Hi kids, very good morning to all. Welcome to Shrivaji Group of Institutions online classes of the Swahili Preschool. Today's date is 29th November 2020 and day is Sunday. Hi kids, it's time for English recitation. Kids, today we will recite the rhyme Doctor Doctor from our syllabus. Okay, let's start. Doctor Doctor, come and see. Doctor Doctor, come and see. Is there something wrong with me? Cough and cold, do check me. Cough and cold, do check me. Then I have run and catch a train. Then I have run and catch a train. Kids, learn it well. Thank you. Hello kids, welcome back to your next class, that is English Oral. So take out your English book, English with Phonic, and open the page number 39. Kids, today we will learn IP ip sound, IT it sound word, IT IN in sound word. Okay, let's start. D, D, E per dip, H, E per hip, La, E per lip, Na, E per nip, Z, E per zip, Ta, E per tip, Pa, E per pip, Sa, E per sip. Okay, repeat it again. D, I per dip, H, I per hip, L, I per lip, N, I per nip, Z, I per zip, T, I per tip, P, I per pip, S, I per sip. And now IT it sound word. B, eat a bit, F, eat a fit, H, eat a hit, S, eat a sit, P, eat a pit, K, eat a kit, La, eat a lit. B, IT bit, F, IT fit, H, IT hit, S, IT sit, P, IT pit, K, IT kit, L, IT lit. And now IN, inner sound word. B, in a bin, P, in a pin, T, in a tin, V, in a win, F, in a fin. B, IN bin, P, IN pin, T, IN tin, W, IN win, F, IN fin. Kids, आप लोगों को फोनिक की हेल्प से आपको साउंड वर्ड रीड करने हैं. ओके, थैंक यू. Hi kids, welcome back to your next class, that is English written. So take out your English notebook where I have done the setting of 29th November 2020 and day is Sunday. Kids, today we will do exercise what comes before, after and between. आज हम लोग exercise करेंगे what comes before, after and between. Kids, इस exercise में क्या होता है, आपको ये लेटर्स दिए हुए हैं. ओके, हमको रिकॉग्नाइज करना होगा कि कौन से लेटर्स के पहले हमको लेटर्स राइट करना है, कौन से लेटर के बाद, आफ्टर मीन्स बाद में लेटर आएगा, एंड कौन से लेटर में हमको इन बिटवीन राइट करने हैं लेटर्स. ओके, बिफोर मीन्स पहले, लेटर से पहले वाले लेटर, एंड आफ्टर मीन्स बाद वाले लेटर, इन बिटवीन मीन्स 2 लेटर आपके पास दिए होंगे, और बीच में कौन सा लेटर आपको राइट करना है वो आपको ऐसे सेम एज करना होगा. ओके, तो आपको इसके लिए आपको अल्फाबेट्स बहुत अच्छे से लर्न करने होंगे A to Z. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. Q, Q for queen. What will comes before Q? So here we will write the alphabet P, Q, R, Q, P, P. So here we will write the alphabet P. यहाँ पर P आएगा. Q, P comes before Q. Okay. Next letter is K. What will comes after K? L. So here we will enter L, capital and small both. Next is B.
what will comes before letter B? So here we will write capital A and small a. Okay. Next is J dash L. What will comes in between J and L? J K L. So here we will write the capital K and small k. Both two letters. And next is T. What will comes before T? Kids? S. Q R S then T. So here we will write the letter capital S and small s neat and clean. Okay? Kids, you have to do this exercise neat and clean. Thank you. हेलो किड्स, इट्स टाइम फॉर हिंदी रेसिटेशन। बच्चों, आज हम लोग हिंदी रेसिटेशन क्लास में नानी नानी सुनो कहानी राइम को लर्न करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। नानी नानी सुनो कहानी, नानी नानी सुनो कहानी। एक था राजा एक थी रानी, एक था राजा एक थी रानी। राजा बैठा हाथी पर, राजा बैठा हाथी पर। रानी बैठी पालकी पर, रानी बैठी पालकी पर। बादल गरजा बरसा पानी, बादल गरजा बरसा पानी। भीगा राजा बच गई रानी, भीगा राजा बच गई रानी। नानी नानी सुनो कहानी, नानी नानी सुनो कहानी। ओके किड्स, you learn it well. Thank you. Hello kids, welcome back to your next class, that is Hindi oral. So take out your Hindi book Shabd Gyan and open the page number 32. बच्चों, अभी तक हम लोगों ने स्वर, व्यंजन, अक्षर पढ़े थे। अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो चलिए आज हम लोग 3 अक्षर के शब्दों से वाक्य को पढ़ना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट। मटर मटर चक, चाखा चक। एंडिंग लाइन, एंडिंग लाइन या पूर्ण विराम। हम लोगों को इसमें 1 सेकेंड के लिए स्टॉप होना है, रुकना है। नेक्स्ट, कलश भरा भर, पूर्ण विराम। इट मीन्स हमको यहाँ पर रुक जाना है। कलश भर। रमन रमन, ठहर ठहर, पूर्ण विराम। ये बोलना नहीं है, ये हम लोगों को, अगर पूर्ण विराम यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन होती है तो इसका मतलब होता है कि हमको अब रुकना है। ये हमारा वाक्य खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उधर चला चल, उधर चल। नमन करा कर, नमन कर। नरम बन, नरम बाना बन। अटक मत, बहन चला चल, बहन चल। झगड़ झगड़, माता मत। सबक पढ़ पढ़, सबक पढ़। शहद शहद, चाखा चख, शहद चख। अकड़ अकड़, माता मत, अकड़ मत। तो बच्चों, हम लोगों को इसी तरीके से वाक्य को पढ़ना होगा। थैंक यू। Hello kids, welcome back to your next class, that is Hindi lesson. So take out your Hindi notebook
where I have done the setting of 29th November 2020 and day is Sunday. Kids, आज हम लोग हिंदी की क्लास में 2 वर्क करेंगे. पहला है 3 अक्षर वाले 10 शब्द लिखेंगे and then WD means word dictation related to 3 अक्षर वाले शब्द. 3 अक्षरों से रिलेटेड शब्दों को हम लोग यहाँ पे डिक्टेट करते हुए लाइक इमला, हम लोग WD को इमला भी बोलते हैं. ओके, इमला. तो इमला करने के लिए पहले हमको 3 अक्षर वाले शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना होगा. ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं 3 अक्षर वाले शब्द. पहले लिखते हैं का, मा, ला, कमल. कमल के तालाब में होता है. ओके, एंड नेक्स्ट है कलम, कलम. का, ला, मा, कलम. कलम मीन्स पेन, जिससे हम लोग लिखते हैं. एंड देन फिर लिखेंगे हम लोग शा, हा, द, शहद. फिर हम लोग लिखेंगे सा, ड़ा, का, सड़क. अब ना, या, न, नयन. नयन मीन्स बच्चों आंख. आइस को हम लोग नयन बोलते हैं. नयन, नयन. एंड देन अब यहाँ पर स्पेस नहीं है हमारे पास, तो हम लोग मैं यहाँ पर आगे नेक्स्ट बगल में यहाँ पे राइट करती हूँ. ओके, नयन के बाद ना, मा, क, नमक. ओके, देन मा, ट, र, मटर. नेक्स्ट मा, गा, रा, मगर. फिर अब हम लोगों को लिखना है बा, ता, न, बटन. ओके, बटन के बाद बा, ता, खा, बतख. ओके बच्चों, आप लोगों को जो मैंने नोटबुक में सेट करके 3 अक्षर वाले शब्द दिए थे, उन्हीं को याद करते हुए यहाँ पे 3 अक्षर वाले 10 शब्द लिखने हैं. एंड देन अब हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे WD. इट मीन्स वर्ड डिक्टेशन रिलेटेड टू 3 लेटर्स. 3 अक्षरों से मिलके हम लोगों को शब्द लिखने हैं इमला में. बच्चों, इमला में हमें अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की हेल्प लेनी होगी. ये आप लोग अपने आप अकेले नहीं कर पाएंगे. ओके, हमारे पेरेंट्स या टीचर हमको शब्द बोलेंगे बीच से और हमको तुरंत उसको अपनी नोटबुक में राइट करना है. तो जैसे मैंने आपको पहला शब्द बोला बटन, तो आप लोग अपनी नोटबुक में राइट करेंगे बा, ट, न, बटन. ओके, एंड देन फिर आपको न्यू शब्द दिया जाएगा जैसे कमल, कमल. तो आप लोग अपनी नोटबुक में बिना देखे हुए लिखेंगे का, म, ला, कमल. ओके, देन स्लीपिंग लाइन. फिर आपको नया शब्द दिया जाएगा. जैसे नया शब्द बोला गया इमला में बतख, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बा, ता, ख, बतख. फिर आपको आपके टीचर ने या पेरेंट्स ने शब्द दिया है लिखने के लिए मगर, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे पहले मा, ग, र, मगर. किड्स, WD लाइक इमला. इमला की तरीके ही WD होता है. WD मीन्स वर्ड डिक्टेशन. ओके किड्स, यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक नीट एंड क्लीन. थैंक यू. Hello kids, welcome back to your next class, that is Maths Written. So take out your Maths notebook where I have done the setting of 29th November 2020 and day is Sunday. Kids, today we will do exercise dosing. It means
आपको बीच बीच में डिक्टेट करा जाएगा टीचर या पेरेंट्स की हेल्प से आप ये एक्सरसाइज करेंगे। डॉजिंग मीन्स बीच बीच से फुटकर लेटर्स को, नंबर्स एंड स्पेलिंग को राइट करना है। ओके, यहाँ पे टीचर है, पेरेंट्स आपको बोलेंगे, आप इंस्ट्रक्शन देंगे और आपको यहाँ पे नंबर लिखना होगा, देन उसकी स्पेलिंग लाइक दैट। जैसे मैंने आपको नंबर बोला है 9, सो हियर यू हैव टू राइट नंबर 9 एंड देन यू हैव टू स्पेलिंग राइट ओवर हियर। ओके, आपको यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी लिखनी होगी, 9 की स्पेलिंग भी लिखनी है। सो यू हैव टू राइट स्पेलिंग ऑफ 9 NINE। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर इज 7। तो आपको यहाँ पे नंबर लिखना होगा 7 एंड देन यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ नंबर 7। आपको नंबर 7 की स्पेलिंग भी लिखनी होगी। नंबर 7 की स्पेलिंग क्या है? SEVEN। ओके, इस तरीके से आपको नंबर एंड स्पेलिंग लिखनी होगी डॉजिंग में। देन यू हैव टू राइट द नंबर 5 एंड देन स्पेलिंग ऑफ नंबर 5। आपको पहले नंबर मिला 5, तो आप लोग नंबर लिखेंगे 5 एंड देन स्पेलिंग ऑफ नंबर 5 FIVE। 5 की स्पेलिंग क्या होती है? FIVE 5। एंड देन यू हैव टू राइट 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write number 3 and then you have to write the spelling of number 3 THREE। 3 की spelling THREE 3। and last you have to write 2। आप लिखेंगे number 2 and then spelling of 2 is TWO2। 2 की spelling हुई TWO2। किड्स, आपको इसी तरीके से डॉजिंग करनी होगी। यहाँ पे नंबर और स्पेलिंग दोनों आपको करने हैं। ओके किड्स, डू इट नीट एंड क्विक। थैंक यू। हेलो किड्स, वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट क्लास, दैट इज मैथ्स ओरल। किड्स, टुडे वी विल लर्न द टेबल ऑफ 2। आज हम लोग 2 की टेबल को लर्न करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। ओके, रिपीट इट अगेन। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 and 2 10 जा 20। Kids, you have to learn it like this again and again. Thank you. Hello kids, welcome back to your last class, that is GK Oral. Kids, today you have to learn some questions and their answer from the syllabus। हम लोगों को ये कुछ questions हैं, उनको हमको अपनी syllabus से learn करना होगा। Okay, let's start। Question number 1 is birds that gives us egg। वो कौन सी birds है जो हमको egg देती है? Okay, birds that gives us egg, that is hen। Hen gives us egg। Okay, question number 2 is cow and buffalo gives us milk। cow और buffalo क्या देती हैं? दूध, milk देती हैं। Okay, cow and buffalo gives us milk। question number 3 is sheep gives us wool। sheep means भेड़। भेड़ हमें क्या देती है? wool, sweat, ऊन से क्या बनता है? स्वेटर। ओके, sheep gives us wool। question number 4 is camel and donkey carry load। camel and donkey किस हेल्प में होते हैं? camel means ऊंट, camel means ऊंट and donkey means गधा।
ये हमारी क्या हेल्प करते हैं, जो भारी बोझ होता है वो उसको ढोते हैं. ओके, कैमल एंड डोंकी कैरी लोड्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज बर्ड दैट लिव इन वाटर. वो बर्ड जो पानी में रहती है, दैट इज डक. डक मीन्स बतख. बतख कहाँ रहती है, वाटर. लिव इन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डांसिंग बर्ड. कौन सी बर्ड, कौन सी चिड़िया डांस करती है, डांसिंग बर्ड, दैट इज पीकॉक. दिस इज पीकॉक. ये कौन है, पीकॉक. ओके, एट लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज टॉकिंग बर्ड. टॉकिंग, कौन सी बर्ड टॉकिंग करती है, बात करती है, टॉकिंग बर्ड इज पैरेट. ओके किड्स, लर्न इट वेल. रिपीट इट अगेन. ओके, horse that gives us egg, hen, cow and buffalo gives us milk, sheep gives us wool, camel and donkey carry load, dog guards our home, birds that live in water, duck, dancing bird, peacock, talking bird is parrot. Kids, learn it. You have to like this. Thank you.